A water bearer in India had two large pots, each hung on each end of a pole which he carried across his neck. One of the pots had a crack in it, and while the other pot was perfect and always delivered a full portion of water at the end of the long walk from the stream to the master's house, the cracked pot arrived only half full. तो भारत देश में एक जलवाहक था जो पानी लेकर जाया करता था अपने मालिक के घर। तो अपने कंधे पर एक लाठी और उस लाठी के दोनों छोर पर दो बड़े मटके या बर्तन कह सकते हैं हम, पानी से भरे हुए लेकर चलकर काफ़ी लंबा रास्ता तय करके वो मालिक के घर पानी पहुंचाने का काम करता था। दो बर्तनों में से जो एक बर्तन था उसमें दरार थी और दरार होने के कारण वो जब भी लंबी यात्रा के बाद मालिक के यहाँ पहुँचता तो आधा ही भरा होता, जबकि जो दूसरा वाला घड़ा था जो बिल्कुल परफेक्ट था, परिपूर्ण था, हमेशा ही पूरा भरा हुआ रहता था। और ये सिलसिला 2 वर्षों तक चलता रहा। For a full 2 years this went on daily, with the bearer delivering only 1.5 pots full of water to his master's house. Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments, perfect to the end for which it was made. But the cracked pot was ashamed of its own imperfection and miserable that it was able to accomplish only half of what it had been made to do. तो 2 वर्षों तक जब ये सिलसिला चलता रहा तो जलवाहक 1.5 मटका बर्तन भरा हुआ मास्टर के घर, अपने मालिक के घर पहुंचाता रहा। और इसी दौरान जो परफेक्ट वाला बर्तन है उसे अपने आप पर बहुत गर्व था कि वह जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो बहुत ही परफेक्शन से अपना काम कर रहा है, जबकि उस बर्तन में जिसमें दरार थी, दरार वाले बर्तन को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उसमें कमी है, उसमें दरार है और इस वजह से वह हमेशा आधा ही काम कर पाता है। After 2 years of what it perceived to be a bitter failure, it spoke to the water bearer one day by the stream. I am ashamed of myself and I want to apologize to you. 2 वर्षों के बाद जब घड़ा जिसमें दरार थी उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तो आखिर उसने जलवाहक से कहा कि मुझे अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। Why? asked the bearer. What are you ashamed of? I have been able for these past 2 years to deliver only half my load because this crack in my side causes water to leak out all of the way to your master's house. Because of my flaws, you have to do all this work and you don't get full value from your efforts, the pot said. तो घड़े ने बड़ी शर्मिंदगी से कहा कि पिछले 2 वर्षों से मुझे जितना पानी उठाना चाहिए मैं उठा नहीं पाता क्योंकि मेरे अंदर ये जो दरार है इससे पानी लीक हो जाता है और मेरी कमियों की वजह से तुम भी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। इस बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। The water bearer's heart went out to the old cracked pot, and in his compassion he said, As we return to the master's house, I want you to see the beautiful flowers along the path. जलवाहक ने जब दरार वाले घड़े की बात सुनी
तो उसका मन करुणा से भर गया। उसने कहा कि जब हम मालिक के घर से वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें वो सुंदर फूल दिखाना चाहता हूँ। Indeed, as they went up the hill, the old cracked pot took notice of the sun warming the beautiful wild flowers on the side of the path, and this cheered it some. But at the end of the trail, it felt sad because it had leaked out half its load, and so again it apologized to the bearer for its failure. The bearer said to the pot, "Did you notice that there were flowers only on your side of the path, but not on the other pot's side? That's because I have always known about your flaw and I took advantage of it. I planted flower seeds on your side of the path, and every day while we walk back from the stream, you have watered them. For 2 years, I have been able to pick these beautiful flowers to decorate our master's table. Without you being just the way you are, he would not have this beauty to grace his house." तो जलवाहक ने दरार वाले घड़े से कहा कि क्या तुम ये सुंदर से फूल देख सकते हो जो सिर्फ राह के एक ही तरफ है? ये एक ही तरफ इसलिए है क्योंकि जब मैंने तुम्हारी कमी को देखा कि तुम में दरार है तो मैंने उसका सदुपयोग किया। तुम्हारे साइड पे रास्ते का जो तुम्हारा बाजू है उस तरफ मैंने फूलों के बीज बो दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए। तो हर रोज़ जब हम चलकर मालिक के घर जाते पानी देने, तुम्हारी दरार से बहते हुए पानी ने इन छोटे पौधों को सींचा है और 2 सालों में इतने सुंदर फूल आए हैं और ये फूलों से हम अपने मालिक का घर सजाते हैं। तो तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी कमियों को भी सदुपयोग में लाना ही ज़िंदगी है, ना कि हम खुद को दूसरों से तुलना करें। हम जैसे भी हैं अपने आप में पूर्ण हैं। अपनी कमियों को जानना और अपने स्ट्रेंथ्स को जानना और उस हिसाब से हम क्या दे सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं दूसरे की, हमेशा ये भाव रखें। आपकी कमियां ना रहकर आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और पावर बन सकती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक the story and subscribe to the channel. Thank you.